Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative video titled Changing Life Part 1 Geography Topic for Maharashtra State Board. Standard 9th inch that sheds light on significant changes in India's way of life. This knowledge-packed article aims to provide a comprehensive explanation of these transformations for students studying under the Maharashtra State Board. The video starts by discussing the changes in the geographical setting of India. It covers aspects like urbanization, industrialization, and the impact of modern infrastructure on people's lives. The tutorial illustrates how these developments have shaped the way Indians live, work, and interact within their communities. Furthermore, the video delves into the cultural and social changes that have occurred over time. It explores the growth of popular culture, the influence of media, and changing societal norms. Students will gain insights into the shift towards a more globalized and interconnected world. Additionally, the tutorial touches upon the advancements in technology and the subsequent digital revolution. It explains how technological innovations have revolutionized various sectors such as communication, healthcare, and education. This article aims to broaden students' understanding of the significant role technology plays in a changing society. Overall, this video provides a valuable resource for students studying geography and aspiring to keep pace with the changing dynamics of life in India. It offers well-curated knowledge explanations, ensuring that students are equipped with the necessary information to navigate the evolving world around them. Okay, people, we will start with changing life. यहाँ पे बस अब स्टार्ट और एंड ही हो रहा है. आपका ना तो स्टार्ट हो रहा है ना तो एंड हो पाएगा जिस तरह से आप चल रहे हैं. ठीक है. ओके, चेंजिंग लाइफ में पीपल बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस कि हमारे इंडिया में लाइफ कैसे चेंज हुआ है. ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैव कॉज्ड अ चेंज इन द लाइफ. तो आपका चेंजिंग लाइफ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, सोशल वेलफेयर, अर्बनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे तमाम फैक्टर्स हैं जिनके वजह से लाइफ में हमको चेंज देखने को मिला है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर brought about a sea of change in our traditional mindset through the medium of Indian Constitution. So हाल ही में हमने देखो 26 जनवरी मनाया, और ये 26 जनवरी किस लिए बनता है? 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है. रिपब्लिक डे मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. ठीक है. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बेसिकली. ठीक है. तो आप अगर देखोगे भाई साहब, रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड जस्ट रिसेंटली. ठीक है. सो रिपब्लिक डे मतलब आपका कब था भाई साहब? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है that came into force, came into being. ठीक है. came into being. Now what is constitution? Constitution भाई साहब होता है एक देश को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स. ठीक है. दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स सो दैट वो सुचारू रूप से चल सके. ठीक है. किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, किसी के भाई साहब राइट्स वायलेट ना हो. ठीक है. सो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड हिज टीम, बेसिकली बहुत बड़ी टीम थी जिन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल को अडॉप्ट करवाया. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली फ्रेम. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है. सारे इंडियंस जो हैं बिफोर लॉ दे आर ऑल इक्वल. ठीक है. किसी में भी वैसा भेदभाव नहीं होगा. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस. ठीक है. रिलीजन मतलब धर्म के ऊपर कोई भी वैसा भेदभाव नहीं होगा. रेस होता है, देखो जैसे मतलब एक एक रिलीजन में भी अलग अलग रेसेस होते हैं. रेस पे कोई नहीं. कास्ट मतलब जात, जेंडर मेल या फीमेल, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे किसी की पैदाइश हुई है. इन सब चीज़ों को लेकर भारतवासियों में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है इन चीज़ों के लिए. ठीक है. अगर कोई ऐसा कर रहा है सो दैट पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाँ, गाली गलौच नहीं करेंगे, किसी का इंसल्ट या मानहानि नहीं करेंगे. लेकिन समझ लो अगर गवर्नमेंट का कोई रूल आया है जो हमको नहीं परवड़ता, उसके बारे में आप वॉइस आउट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कोई भी कहीं पे भी कोई भी रूल है, कोई भी चीज़, अगर कोई रूल आया है या कोई चेंजेस आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको नहीं पसंद है, या आपके उसके लिए देयर आर सम
थिंग्स दैट यू वांट टू अपोज ऑन, यू आप फ्रीली कर सकते हैं। आप लोगों को इकट्ठा करके उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी बोलना नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब होता है कि आप कायदे तरीके से किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करें, ठीक है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। टू मूव टू लिव एंड सेटल डाउन एनीवेयर ऑन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कहीं पे भी इंडिया में आप मूव कर सकते हैं, आप कहीं पे भी सेटल डाउन हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब कोई केरलाइट आके महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, या कोई महाराष्ट्रन वेस्ट बंगाल में नहीं रह सकता, या भाई साहब कोई यूपी वाला आंध्र प्रदेश में नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो लिंग्विस्टिक डिविजन्स हुए हैं, जितने भी आपके स्टेट्स फॉर्म हुए हैं, दे आर एज पर द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रांत का कोई दूसरे प्रांत में नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपके सिंपल चीज़ें हैं। टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन लॉफुली, बाय लॉ आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, इलीगल नहीं, कोई भी धंधा जो लीगल है उसको आप बखूबी कर सकते हैं। टू नर्चर द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो जितना भी आपके अटेम्प्ट्स हैं, किसी स्टेट का अटेम्प्ट हो सकता है कि अपने कल्चर को नर्चर करें, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये मतलब जैसे समझो कि अभी सीबीएसई में भी आपका मराठी कंपलसरी हो गया है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपके लिए मराठी कंपलसरी हो गया। सीबीएसई में पहले ऑप्शन था आप लें या ना लें, ठीक है, संस्कृत और हिंदी में, लेकिन अभी वो कंपलसरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का प्रावधान है। अगर आप स्टेट में रहते हैं तो यू शुड बी नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इफ़ यू आर गेटिंग एजुकेटेड इन दैट स्टेट। तो ये क्या है भाई साहब, ये एक अटेम्प्ट है लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। स्क्रिप्ट एंड कल्चर, तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो बाकायदा सही हैं, ठीक है, दे आर ऑल करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। रेस्टोरेंट्स, नो वन कैन गो इन द रेस्टोरेंट इररिस्पेक्टिव, नाउ एनीवन कैन गो इन द रेस्टोरेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था भाई साहब, ब्राह्मण शूद्र के साथ नहीं खा सकता, ठीक है, हिंदू मुसलमान के साथ भाई साहब नहीं खा सकता, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अभी कोई भी रेस्टोरेंट में एंट्री कर सकता है, पैसा देके कोई भी खाना खा सकता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं कि रेस्टोरेंट में एंट्री बार होगी, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी फूड कोर्ट में किसी के लिए भी कोई एंट्री के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे तो कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली यूएस वगैरह में पहले भाई साहब आपका स्किन कलर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस था, जहाँ पे ब्लैक्स को रेस्टोरेंट्स में अलाउड नहीं थे, ठीक है। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू एंटर अ रेस्टोरेंट, इवन इफ दे एंटर्ड, लोग उनको इतना चिढ़ाते थे कि वो भाई साहब बाहर आ जाते, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें होती थी। इनफैक्ट चर्च में भी अलाउड नहीं था, ठीक है। तो चर्च में भी भाई साहब दे वर नॉट अलाउड, मतलब अभी नहीं है, पहले के ज़माने में, ठीक है। तो एक कहानी भी है कि एक बार एक ब्लैक चर्च के फादर से पूछता है कि मुझे चर्च में एंट्री चाहिए। तो फादर बोला क्यों चाहिए? मतलब मुझे भगवान को अपने जीवन में प्राप्त करना है, ठीक है। तो फादर ने उसको घुमाया, ठीक है। तो बोला कि एक काम करो, पहले अपने आप को शांत करो, ठीक है, पहले थोड़ा बहुत ध्यान वान करो, ठीक है, पहले अपने आप को शांत करो, तब जाकर अगर मुझे लगेगा कि तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो अभी ये चला गया, अभी क्या बोल दिया इसको, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, चला गया। कुछ महीनों बाद ये फादर ऐसे ही मार्केट में घूम रहे थे, तो इन्होंने इसको देखा, तो ये निगरों को देखा, तो निगरा बड़ा शांत टाइप का लग रहा था, मतलब कोई उसके मतलब चेहरे पे शिकंज नहीं थी, बड़ा ही सुगठ, मतलब एकदम जो शांत हो जाते हैं ना, एकदम साधु टाइप का हो गया है वो, ठीक है। तो फादर ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम वापस नहीं आए? मैंने तुम्हें बोला था ना अपने आप को शांत करो पहले, ठीक है, थोड़ा ध्यान वान करो पहले कुछ, फिर उसके बाद तुमको एंट्री मिलेगी, तुम तो आए नहीं। बोला मैं अपने आप को शांत करने के प्रयास में एक दिन भगवान मेरे सपने में आ गया। बोला अच्छा, भगवान तुम्हारे सपने में आ गए? क्या बोला उन्होंने? तो मैंने बोला कि मैं बहुत साधना कर रहा हूँ आपको पाने के लिए अपने जीवन में, और मेरी तो बोला कि ठीक है ना, तो पा ले, क्या है? बोला नहीं, मुझे उस चर्च में जाना है और वहाँ से आपको पाना है। तो भगवान हंसने लगे। बोला कि जब से ये चर्च बना है, तू उस चर्च में घुसने की बात कर रहा है, जब से ये चर्च बना है मैं भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भी एंट्री नहीं मिली।
ठीक है। सो यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट आपके जितने भी पहले के ज़माने के रेस्ट्रिक्शंस होते थे मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, या चर्च को लेकर, या रेस्टोरेंट्स को लेकर, या जहाँ पे कुएं से पानी भरते हैं, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शंस वेर ईदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और इवन स्किन कलर। हमारे इंडिया में स्किन कलर को लेकर भेदभाव नहीं है, लेकिन कास्ट को लेकर और रिलीजन को लेकर और रेस को लेकर काफ़ी सारा भेदभाव है, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा करके आपका रेस और स्किन कलर को लेकर है, ठीक है। ओके, सो बोर्ड्स आउटसाइड रेस्टोरेंट्स वेलकमिंग ऑल। तो अगर रेस्टोरेंट है तो बाहर आपका ऐसा वेलकम ऑल का भाई साहब एक बोर्ड लगा रहेगा। राइट टू एक्सप्रेस, अर्लियर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स वाज लिमिटेड। बेटा ठीक है, अर्लियर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस अगेंस्ट पॉलिटिकल रूलर्स वाज लिमिटेड। आप भाई साहब पॉलिटिकल रूलर्स के अगेंस्ट में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, कहीं भी एक ताबड़तोड़ भाई साहब कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन आज की तारीख में अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखोगे या लोगों के बीच में आपस में बातें भी देखोगे तो दे कैन स्पीक फ्रीली। सिटीजन्स कैन नाउ एक्सप्रेस ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर भाई साहब गवर्नमेंट का कोई रूल आया है जो वैलिड नहीं है, या शायद वैलिड हो लेकिन शायद मतलब ज़्यादा करके जन समुदाय के लिए वो हानिकारक है, तो उसके बारे में आराम से चर्चा हो सकती है, उसके बारे में हम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। सिटीजन्स कैन रजिस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस और अदर मीडिया। तो मीडिया के हिसाब से आप किसी भी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज़ को खड़ी कर सकते हैं, अपने प्रोटेस्ट को भाई साहब सबको उसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर वी आर फ्री टू डू, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो हुए हैं। रेलवे क्लास, ठीक है। अभी आप लोगों ने भाई साहब रेलवेज में तो ट्रैवल किया ही होगा, ठीक है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल रेलवेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप कोई बाहर गाँव जाते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इन द ट्रेन 4 काइंड्स ऑफ कंपार्टमेंट्स वेर देयर, ठीक है। क्या क्या था कंपार्टमेंट? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इंटर एंड थर्ड क्लास, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली आपकी अफोर्डेबिलिटी पे था। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप फर्स्ट क्लास में जाइए, अगर आपके पास भाई साहब पैसा नहीं है तो आप थर्ड क्लास में जाएंगे, मतलब आपके पास कम पैसा है। लेकिन ये जो क्लास का विभाजन था ये किसी के माइंड को भी हिट करता है यार, ठीक है। थर्ड क्लास में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। सो नॉमिनल फैसिलिटीज, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पैसेंजर्स। ज़्यादा करके टिकट काउंटर में भी या जो लोग टीसी होते थे उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड रखा था, अरे भाई साहब थर्ड क्लास के पैसेंजर हो तुम, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड रहता था। इसको डिसॉल्व किया गया इन द 1978 रेलवे बजट बाय मधु दंडवते वाज द रेलवे मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पुट एन एंड टू द थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास भाई साहब खत्म हो गया, रेलवे में अभी थर्ड क्लास नहीं है, ठीक है। 2 ट्रेन्स वे स्टार्टेड विद द एब्सेंस ऑफ एनी क्लास डिवीजन, उसमें भाई साहब कोई क्लास नहीं है। सिंहगढ़ एक्सप्रेस ऑन मुंबई पूना रूट एंड गीतांजलि एक्सप्रेस ऑन मुंबई कोलकाता रूट, ये दोनों भी गाड़ियां आज तक भी चल रही हैं, ठीक है। इनमें कोई क्लास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास को तो पूरे सारे ट्रेन्स में डिसॉल्व कर दिया गया और कुछ ऐसी गाड़ियां भी निकाली गई हैं जिनमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये भी नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि क्लास डिस्टिंक्शन बेसिकली क्या, अभी आप देखो जैसे हमारे टाइम पे जो क्लास में कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड आता था, कोई थर्ड आता था, लेकिन अभी वो रैंकिंग्स नहीं है ना। आपके स्कूल में होती हैं क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड? नहीं है, तो क्योंकि लोगों को भाई साहब डीमोटिवेट ना किया जाए, तो ऐसा ही कुछ कार्यक्रम उस टाइम पे भी चलता था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास हुआ करता था रेलवे कंपार्टमेंट्स में। जिस थर्ड क्लास को तो सारे रेलवे बोगीज से अबॉलिश कर दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड क्लास अभी भी चल रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे ट्रेन्स भी निकालेंगे जिसमें ये भी नहीं है, इट्स नॉट देयर। So these are attempts that were made to basically finish the class distinction. India is known as a country of joint families, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज रहते हैं और बाहर के लोगों को ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ सब लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना भी बड़ा घर हो भाई साहब ठसन तो होगा ही, ऐसा, ठीक है। पीपल फील दैट वे, लेकिन हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे लिए एक अच्छी बात ही है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को बहुत आराम से अडॉप्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन
इम्पेटस टू न्यूक्लियर फैमिलीज। अभी धीरे धीरे लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग जा रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का मतलब समझ में आता है, सब लोग एक साथ, दादा दादी जितने भी भाई बहन सब एक साथ जब रहते हैं तो उसको अपन जॉइंट फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो व्हेन दे आर बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन के चलते आपके न्यूक्लियर फैमिलीज जो है तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर brought about a sea of change in our traditional mindset through the medium of Indian Constitution, speech, writing और mass media. Indian Constitution, good. चलिए भाई साहब, write short notes on the institution of family. तो family भाई साहब, during the pre-independence period, the institution of family was a distinct identifying feature of Indian society. India was known all over the world as the country of joint families. तो प्री इंडिपेंडेंस एरिया में ज़्यादा करके सब लोग एक साथ ही रहते थे और इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता था, एज अ कंट्री ऑफ जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। बट द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन एन इम्पेटस टू द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज आज की तारीख में ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब माता पिता और बच्चे, ठीक है, इतना ही हो रहा है। तो देयर वाज अ चेंज, ठीक है, आपके फैमिली सेटअप में, ठीक है, फैमिली सेटअप में द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो शहरों में खर्चा बहुत बड़ा है। गांव खेड़ों में भाई साहब आप रह सकते हैं, लेकिन शहरों में खर्चा बहुत बड़ा है। अभी समझ लो एक जॉइंट फैमिली है, तो समझ लो बड़े भाई का अच्छा खासा काम चल रहा है, छोटे भाई का अच्छा खासा काम चल रहा है, लेट्स से मझले भाई का कोई काम नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, मझले भाई के जो बच्चे हैं उनका स्कूल का खर्चा, उनका भाई साहब खाना पीने का खर्चा, ये दोनों भाई आपस में चला रहे हैं। ऐसा होता है जॉइंट फैमिलीज़ में, जिसके वजह से कलह होती है, ठीक है। ये एक रीज़न है, क्योंकि भाई स्कूल का खर्चा चलाना कोई बड़ी मतलब आसान काम नहीं है, या खाने पीने का खर्चा भी चलाना, ठीक है। सो क्या होता है जॉइंट फैमिलीज़ में भाई साहब लोग हैं, उनका चल ही जा रहा है, कुछ काम करें या ना करें चल जा रहा है, ठीक है। सो कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं और ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो है ही, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। आंसर इन डिटेल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोविजंस of the Indian Constitution on the Indian society? The provisions mentioned in the Indian Constitution shook the foundation of the caste system that had trapped the Indian society. तो Indian society में भाई साहब कास्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा दबदबा था और मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन आपका कास्ट सिस्टम की वजह से होता था। मैक्सिमम आपका जो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर था वो आपका था भाई साहब कास्ट सिस्टम की वजह से, ठीक है। ऊंची और नीची जात के लोगों के बीच में भाई साहब एक हमेशा कलह का सिचुएशन बना रहता था, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई साहब एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एनीथिंग, ठीक है। ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन इवन द नोशन ऑफ फैमिली वोकेशंस वाज डिस्कार्डेड, ठीक है। चेंजेस अकर्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। ऑल्सो इट बिकेम पॉसिबल फॉर द इंडियन सिटीजन to express their opinions against the government through newspapers, speeches and other media, क्योंकि हमको क्या मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अपने को भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी गारंटी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के चलते इट इज पॉसिबल नाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली even if it is a policy adopted by the government. In this way, the provisions of the Indian Constitution created an Indian society free from caste and free from discrimination and caste system. तो डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम से हमको भाई साहब मुक्ति मिली, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है टू एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, टू मॉडिफाई द फैमिली प्रायोरिटीज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली टू एंश्योर दैट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स or these were the changes that were adopted. Which kinds of discrimination does the constitution prohibit? So discriminations based on caste, religion, creed, race, okay, and gender. As per the Indian Constitution, all Indians are equal before law. The Constitution prohibits discrimination on the basis of religion, okay, race, caste, gender or place of birth. Therefore, all citizens have the freedom to live, to move or live anywhere and practice any occupation. आप कहीं पे भी जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया में आप कहीं पे भी जाकर किसी भी स्टेट में जाकर आप सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट, ठीक है। और क्या है भाई साहब, एंड यू कैन प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन।
अगर आपका लीगल ऑक्यूपेशन है तो कोई भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस एनी लीगल ऑक्यूपेशन. Anyone can go to any restaurant irrespective of his religion, race, caste or gender. In fact, we see boards outside the restaurant welcoming all. तो उसमें लिखा रहता है भाई साहब welcome all, ठीक है, ऐसा लिखा रहना चाहिए. Are we clear on this one, people? Any questions sir? No questions sir? बहुत बढ़िया. एक मिनट आप लोगों का भाई साहब. ओके, तो अपन बात करेंगे अभी सोशल वेलफेयर की वाइल चेंजेस. सो इंडिया फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट सोशल वेलफेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है. एक जो पॉइंट है आपको हर आंसर में लिखना पड़ेगा, एनी आंसर पर्टेनिंग टू दिस चैप्टर. तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने सोशल वेलफेयर को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, ठीक है. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट सोशल वेलफेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. इसमें भाई साहब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नेसेसरी दैट अपॉर्चुनिटीज टू रीच वुमेन, चिल्ड्रेन, डिफरेंटली एबल्ड. आज की तारीख में हम डिसेबल्ड या हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, ठीक है. डिफरेंटली एबल्ड, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 14th of June 1964. इंपॉर्टेंट डेट है. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सोशल वेलफेयर को हमने एक मिनिस्ट्री के तहत इसको रखा हुआ है. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर इट वाज बेसिकली came into force on the 14th of June 1964. Programs that were implemented by this ministry, nutrition and child development. तो चिल्ड्रन को सही टाइम पे सही खुराक मिलना ज़रूरी है, ठीक है, पौष्टिक आहार मिलना ज़रूरी है. न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, आपके सोसाइटी में आपके लिए एक ऐसा परिवेश बनाना जहाँ पे आप सेफ फील करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी. सोशल प्रोटेक्शन. सोशल प्रोटेक्शन मतलब आपके साथ कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन वाला जो भी केस होगा उसको फटाफट से रिजॉल्व किया जाए, सोशल प्रोटेक्शन. वुमेन्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट. सो दीज आर द थिंग्स, मतलब सोसाइटी को लेकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये. तो सोसाइटी में किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, किसी के ऊपर भी भाई साहब कोई भी प्रताड़ना ना हो, ऐसी चीजें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर. ओके ओके ओके. शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. तो 22% पीपल इन इंडिया बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब एज पर 1971, ठीक है. SC ST में तो लॉज इनेक्टेड फॉर एजुकेशनल स्कॉलरशिप. एजुकेशनल स्कॉलरशिप मतलब इनको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सालों से प्रताड़ित हैं, ये बहुत सालों से दमित हैं और बहुत सालों से इनका विकास नहीं हुआ है. बिकॉज हमारे समाज में जिस तरीके का डिस्टिंक्शन था, तो अपर कास्ट वालों ने दे हैव ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड द पीपल हु बिलोंग टू द लोअर सेगमेंट, ठीक है. सो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पे बहुत सालों से भाई साहब ऐसा चलता आ रहा है. तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप मतलब इनका अगर हमको विकास करना है तो इनको ऊपर लाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. और वहाँ पे भाई साहब हमने क्या किया है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मतलब जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है. ओके. रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. इन लोगों का ज़्यादा करके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, ताकि इनके मुद्दे प्रॉपरली डिस्कस हो, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबली. रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज में इनके लिए रिजर्वेशन हैं, ठीक है. प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन हैं, ठीक है. देयर आर रिजर्वेशंस टू दिस. ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर टुमारो, चेंजिंग लाइफ. और पीपल वी आर कंटिन्यूइंग विथ ये संकेतवार है, ओ संकेतवार जरा उसको बंद कर देना भाई साहब. तो वी वर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग लाइफ सिनेरियोस इन इंडिया विथ रिगार्ड्स टू हिस्ट्री, ठीक है. अभी यहाँ पे देखो व्हाट वर द चेंजेस दैट वर टेकन प्लेस इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर. तो पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में एक ईयर था जिसको अपन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, ठीक है. इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, 1920 था बेसिकली. इस 1920 के पहले डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर था. समझ में आ रहा है ये भाई साहब, डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर था, मतलब जिस रेट से लोग पैदा हो रहे थे लगभग उसी रेट से लोग मर भी रहे थे. और इसका एक मुख्यतः कारण ये था कि हमारे पास ज्यादा करके डिजीजेस के आंसर्स नहीं थे इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन और पोस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है. जैसे आज की तारीख में
आप अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज जब एक बच्चा पैदा होता है तो लगभग उसके पहले 2 सालों में मेजर डिजीजेस का टीकाकरण हो जाता है, ठीक है। यू आर एक्चुअली गेटिंग रिड ऑफ द मेजर डिजीजेस दैट माइट हार्म यू, ठीक है। सो मेजर डिजीजेस और किलर डिजीजेस जैसे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स आज की तारीख में इंडिया से ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स से बहुत खतरनाक, जो आप चिकन पॉक्स तो हम सबको हुआ ही है और होना अच्छा भी है, ठीक है। इट एक्चुअली गेट्स योर बॉडी इम्यून इन अ वेरी नेचुरल वे टुवर्ड्स दैट डिजीज। लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक होता है और जानलेवा भी होता है। स्मॉल पॉक्स है, डिप्थेरिया है, वूपिंग कॉफ है, ये सारे तमाम जितने भी डिजीजेज हैं इनके टीके आपको बचपन में ही लग जाते हैं, लगभग 2 सालों में। तो जब जैसे जैसे हमारा भाई साहब मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारा क्या होता गया, ये बर्थ रेट, ठीक है, को हमने कंट्रोल नहीं किया लेकिन डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो आज की तारीख में या आप देखोगे टीबी का कोई इलाज नहीं था, मलेरिया होता तो इंसान मर जाएगा। पूरा एक गांव का गांव भाई साहब प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में नहीं है, लेकिन गांव के गांव गायब हो जाते थे, मतलब खत्म सबके सब। कॉलेरा, प्लेग, दीज वर एपिडेमिक डिजीजेस, ठीक है, टू विच वी हैड नो आंसर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भाई साहब आपका चेंजिंग लाइफ के सिनेरियो में पब्लिक हेल्थ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रेज पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारना, ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट का। एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, सबको सही खुराक मिले, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत सालों पहले हमारे बंगाल में एक फेमीन हुआ था, ठीक है। इसको बंगाल फेमीन बोलते हैं, आप बहुत ही बार इसका जिक्र पाएंगे क्योंकि ये बंगाल फेमीन मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब ऐसे जगह हैं जहां पे भाई साहब काफी सारी बड़ी मात्रा में फसल उगाई जाती है, दीज आर एग्रीकल्चरेबल लैंड्स, ठीक है। लेकिन जब यहां पे सूखा पड़ जाए तो भाई साहब अनाज उत्पादन बहुत बुरी तरह से ठप हो जाता है, और बंगाल में ऐसा हुआ, ठीक है। सूखा पड़ा और काफी लोग मारे गए फूड के वजह से, स्टारवेशन की वजह से, ठीक है। मेरा दादाजी डॉक्टर थे उस टाइम पे, और वो बोलते थे कि मैं जब भी ऐसे जाता था ना लोगों को ट्रीटमेंट करने, तो भाई साहब ट्रीटमेंट करूं क्या, मतलब उनको दवाई दूं लेकिन उनके पेट में भाई साहब अनाज ही नहीं है, ठीक है। आप दवाई का असर तो तभी हो सकता है ना जब इंसान का पेट भरा हो, तो अपने साथ साथ भाई साहब चावल की पोटली कैरी करते थे या 2-4 आलू ऐसे कैरी करते थे, ठीक है। कम से कम भाई साहब चावल उबाल के खा तो ले, 4 दिन से जो इंसान भूखा है वो मर ही रहा है वैसे भी, ठीक है। उसको कोई डिजीज पहले मारेगी, उसको भूख मले मार देगी, है ना। सो दैट वाज हाउ इट वाज, ठीक है, कि मतलब न्यूट्रिशन इतनी बुरी तरह से इम्पैक्टेड था। और न्यूट्रिशन इसलिए इम्पैक्टेड था क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको मीटअप करने के लिए हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं था, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। इंप्रूव पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना भाई साहब, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर एट द सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल केयर अवेलेबल टू रूरल पीपल, ट्राइबल्स एंड पुअर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द 6th 5-year प्लान। तो आपका 6th 5-year प्लान क्या बोलता है भाई साहब, 6th 5-year प्लान ये बोलता है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल केयर अवेलेबल टू रूरल पीपल, ट्राइबल्स एंड पुअर, ठीक है, ये सबको अवेल कराया जाए। ये 6th 5-year प्लान में ऐसा लॉन्च हुआ है कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज मतलब वैक्सीनेशन। जैसे आज की तारीख में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कराते हैं तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च होंगे पूरे साल भर में, ठीक है। लेकिन उसी को आप वही वैक्सीनेशन लगभग आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में पा सकते हैं। दीज आर फ्रीली अवेलेबल एट एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। सो ये प्राइमरी हेल्थ सर्विस है, दिस इज बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल केयर इज अवेलेबल टू रूरल पीपल, ट्राइबल्स एंड पुअर। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और हमारे लाइफ को इसने बहुत बड़े तरीके से चेंज लाया, ठीक है। रिकग्निशन टू यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। देखो हम ज्यादा करके कौन सा ट्रीटमेंट कराते हैं, एलोपैथी, ठीक है। एलोपैथी मतलब जो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जो मेडिसिन हमको दिए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे वेज ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे आज की तारीख में भाई साहब आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जिसको अवेल करने के लिए सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी है भाई साहब, नेचर का
ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप किसी शहर में बहुत हाई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन अगर आप एक ब्रेक लेके कुछ दिनों तक गांव में घूम आते हैं तो उसमें भी आपका हेल्थ ठीक हो जाता है, ठीक है। सो इसको नेचुरोपैथी बोलते हैं। होम्योपैथी, आज की तारीख में मतलब किसी ने होम्योपैथी इलाज किया यहाँ पे? होम्योपैथी बेसिकली एक डिफरेंट, इट इज बेसिकली जर्मन टेक्निक है ये, ठीक है। होम्योपैथी इज बेसिकली जर्मन मेडिसिन, जर्मन फॉर्मेट में ट्रीटमेंट है। आपके कामोटे में भी बहुत सारे होम्योपैथी क्लिनिक्स हैं, ठीक है। यूनानी, ठीक है, ऑल दीज आर डिफरेंट मेथड। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी को ही बेसिकली गवर्नमेंट ने फेवर किया है, बाकी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ मेडिसिन को भी एनकरेज किया गया है, ठीक है। ओके, मेड लाइव्स ऑफ इंडियंस फ्री ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। तो जिस तरह से हम पहले हेल्थ कंसर्न हमको थे, आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि काफी सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, डज एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ओपन हार्ट सर्जरी? इसको काटा जाता है और हार्ट को एक्चुअली में निकाला जाता है, ठीक है। हार्ट में कोई ब्लॉकेज होगा या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा जिसको ट्रीट करने के लिए इंसान के हार्ट को बाहर निकाला जाता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी अगर बंद हो गया तो द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज और हर लाइफ, ठीक है। सो ओपन हार्ट सर्जरी, द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी दैट वाज कंडक्टेड, ठीक है, सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन 1962 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एन गोपीनाथ एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो था, उसमें पहली बार इंडिया में ओपन हार्ट सर्जरी परफॉर्म किया गया। आज की तारीख में तो एक आम बात है, किसी भी हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी होता है, ठीक है, बट एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है आज भी, ठीक है। जयपुर फुट, बहुत सारे अपाहिज लोग होते हैं जिनको समझ लो अगर कोई एक्सीडेंट में या कुछ हुआ रहेगा, ठीक है, पूरी टांग नहीं है अगर, तो इसको अगर समझ लो ये घुटने से मेरा टांग नहीं है, तो उसके नीचे वाला हिस्सा जो है, तो जयपुर फुट एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कस्टमाइज तरीके से एक अपंग इंसान को फुट उसके लिए बना कर देती है, ठीक है। जयपुर फुट डिजाइन बाय प्रमोद सेठी एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा, ठीक है। तो ये जयपुर फुट बेसिकली एक फॉल्स फुट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझ लो किसी का फुट पूरा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा वो बना कर देते हैं, दैट इज जयपुर फुट, ठीक है। सो मेड इट इजी फॉर डिफरेंटली एबल्ड। आज की तारीख में हम डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं या हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, in their place we use this word differently abled to walk barefoot on rough surfaces, run, cycle, work in fields, climb etc. ये जयपुर फुट इतने अच्छे क्वालिटी का फुट है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक रियल फुट, और जो चीजें आप रियल फुट के साथ कर सकते हैं लगभग वही सारी चीजें इस जयपुर फुट को लगाकर कोई अपंग इंसान भी कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट जयपुर फुट इज ऑल अबाउट। नो नीड फॉर फुटवेयर, इसमें फुटवेयर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो भाई साहब लकड़ी से बना हुआ है, तो मतलब आपको जूतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यू डोंट एक्चुअली नीड शूज। कैन बी बेंट एट नीज, और अगर जयपुर फुट किसी ने लगाया रहेगा, समझ लो नी के नीचे का हिस्सा उसका नहीं है, जयपुर फुट है, तो जिस तरह से आप नी को बेंड कर रहे हो ऐसे, ठीक है, नॉर्मल में, वैसे उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट और स्टिफ ही रहेगा, यू कैन एक्चुअली बेंड योर नीज एज वेल, ठीक है। सो काफी सारे लोगों ने इसको अपनाया है और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, एक्चुअली ही हैड जयपुर फुट, तो उनका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जयपुर फुट ही था, ठीक है, आज भी है, और नॉर्मल उसको ऊपर से पता ही नहीं चलता है, ठीक है। एक दिन उसने दिखाया तो मुझे पता चला, अदरवाइज ऊपर से पता ही नहीं चलता है, until unless you actually see it you will not be able to understand it, ठीक है। कैन बी बेंट एट नीज, एनेबल सिटिंग क्रॉस लेग, एक नॉर्मल इंसान जैसे भाई साहब क्रॉस, अभी आप जैसे ऐसे बैठते हैं भाई साहब, ठीक है, तो इस तरह से भी आप आराम से बैठ सकते हैं अगर जयपुर फुट लगाया है तो, ठीक है। सो दिस इज वन डेवलपमेंट, और ये एक जो डिजाइन था इसको एकदम स्किन कलर में बनाया गया है, ठीक है, और ये कस्टमाइज्ड है, मतलब जैसा जो होगा, अभी समझ लो कोई भाई साहब 6 फीट का आदमी हो सकता है, कोई भाई साहब 5 फीट का हो सकता है, कोई 4 फीट का हो सकता है, तो कस्टमाइज तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो अपंग इंसान है जिनका भाई साहब हो सकता है फुट ना हो, वो नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सके, ठीक है। ओके, कन्वीनियंट वाइल वर्किंग इन वाटर एंड वेट कंडीशंस, वाटर और वेट कंडीशंस में खराब नहीं होता है, ठीक है, वाटर और वेट कंडीशंस में भी ये खराब नहीं होता है। सो दैट वाज वन अचीवमेंट आउट देयर, जयपुर फुट। ओके, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है बहुत एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी कौन सा काम करता है, हमारे बॉडी में किडनी टॉक्सिन्स को निकालता है, तो हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं
उसको फिल्टर आउट करता है। और आपको मालूम भी नहीं रहेगा कि आपका जो ब्लड है वो अप्रोक्सीमेटली दिन में 400 बार किडनी में पंप होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम्स 400 बार फिल्टर होता है। आप जो यूरिन जाते हैं वो बेसिकली क्या है, फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम योर ब्लड। आपके ब्लड में से ये टॉक्सिन्स को फिल्टर किया गया है और ये काम करते हैं 2 किडनीज, ठीक है, ये किडनी है। ओके, नाउ किडनी का क्या होता है भाई साहब कि अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो वो अपनी एक किडनी को दे सकता है एज डोनेशन, ठीक है। मरणोपरांत भी कोई इंसान अपने किडनी को डोनेट कर सकता है, ताबड़तोड़ ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किडनी जिसका मैल फंक्शन कर जाता है उसका दोनों भी किडनी खराब हो जाता है, और दोनों किडनी अगर खराब हो जाता है तो होगा क्या, जो ब्लड से अभी तक टॉक्सिन्स फिल्टर आउट हो रहे थे वो अभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ब्लड क्या हो जाएगा, टॉक्सिक होता रहेगा, ठीक है। ब्लड में भाई साहब टॉक्सिसिटी फैलती रहेगी, ब्लड जहर होता रहेगा। तो इसीलिए किडनी पेशेंट्स के 2 ही तरीके हैं भाई साहब, उनका डायलिसिस होता है। डायलिसिस मतलब पूरा ब्लड को निकाल कर उसको प्योरीफाई करके फिर से डाला जाता है, और लगभग डायलिसिस में आपके 3-4 घंटे जाते हैं। दैट इज वन प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा है कि भाई साहब अगर कोई डोनर इनको किडनी दे दे, कोई डोनर अगर इनको किडनी दे दे, आप देखोगे भाई साहब लिस्ट बनती है ऐसे, ठीक है, जो किडनी जिनको चाहिए और जो डोनर्स होते हैं, मतलब किसी ने अगर मतलब बोला है कि मेरे मरने के बाद मेरे किडनी को डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, तो इनका भी लिस्ट बनता है, ठीक है। एक सीरीज आई थी ब्रीथ बोल के, उसमें इस समस्या का दिखाया है कि कैसे उसके बेटे को किडनी चाहिए था, और मतलब उसके बेटे का नंबर कुछ 7 या 8 नंबर पे था। तो दिस पर्सन ही लव्स हिज सन सो मच कि इसने उन 6-7 लोगों को मार डाला कि ताकि इसके बेटे का नंबर लग जाए, ठीक है। तो खैर वो दैट्स अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे हम किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी इज बेसिकली वन थिंग विच फिल्टर्स द ब्लड। अगर ये मैल फंक्शन करता है तो आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं, प्रोवाइडेड अ डोनर डोनेट्स, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में डोनेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स के डोनेशंस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया में अलग मान्यताएं हैं, जिस शरीर को हम लेकर आए थे उसी शरीर को हम लेकर जाना है, ऐसा माना जाता है, और इसके वजह से काफी लोग डोनेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट, सो वन थिंग इज किडनी, आप एक जीवित इंसान से भी एक किडनी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बन गया था बीच में, जहां पे लोग भाई साहब किडनी डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी तो एक ऐसा केस भी सामने आया था कि ये लेबर चौराहा मतलब समझते हो, जहाँ पे लेबर्स लोग खड़े रहते हैं और उनको भाई साहब किसी काम के लिए, पेंटिंग का काम हो गया, कारपेंट्री का काम हो गया, तो उनको लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही लेबर चौराहा में 2-3 लेबर खड़े हुए थे, एक गाड़ी आई और उनको बोला कि वैसा काम है, अच्छा काम है, रोज का 10,000 मिलेगा, इतना बड़ा काम है। तो बोले भाई ठीक है, लेकिन उस काम को करने के पहले तुम्हारा एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकर गए भाई साहब उसको, मेडिकल एग्जामिनेशन करने गए, एक हॉस्पिटल में लेकर गए, उसको भाई साहब बेहोश किया, किडनी निकाल ली उसकी, किडनी निकाल कर भाई साहब सिल दिया और छोड़ दिया। बोला कि हो गया, हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया तुम्हारा, लेकिन प्रॉब्लम है, तो अभी तो काम नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद हम तुमको काम पे रख लेंगे, ऐसा बोल के छोड़ दिया। और मतलब 3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में बेहोश ही रखा, उसको ट्रीटमेंट किया। ये बंदे को मालूम ही नहीं है भाई साहब कि उसका किडनी जा चुका है, क्योंकि एक किडनी से भी आपका सिस्टम चल सकता है। ये बेचारे का किडनी चला गया है, ये डॉक्टर्स लोगों ने भाई साहब उसका ऑपरेशन करके, और एक किडनी भाई साहब लोग करोड़ों देते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो देंगे। और इस वाले किडनी के ऑपरेशन में कोई लीगैलिटी नहीं है। जब कोई डोनर किडनी डोनेट करता है, समझ लो मैंने अगर अपना किडनी डोनेट किया और मैं मर गया, तो मेरा लिस्टिंग पे नाम आएगा, दिस पर्सन हैज डाइड एंड हिज किडनी इज अवेलेबल, तो पहला जो एप्लीकेंट है उसको जाएगा। ये पूरा गवर्नमेंट के सर्टिफाइड तरीके से होता है। लेकिन ये जो कांड हुआ, इसमें क्या हुआ भाई साहब, इसका किडनी निकाला गया और यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इस बंदे का किडनी निकाल लिया गया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ये ब्लैक मार्केट में ये किडनी करोड़ों में बिकेगा और डॉक्टर्स को फायदा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रैकेट्स आउटबर्स्ट हुए हैं। इस तरह से इन लोगों ने 10-12 लोगों पे ऐसा किया। और इस मजदूर को क्या किया भाई साहब, अरे तुमको हमने बोला था ना कि हो जाएगा, ये लो भाई साहब 50,000 रुपये दे दिया, वो खुश भाई साहब, 50,000 रुपये मिल गए, पता नहीं क्या किया, एडवांस में रख लो 50,000 रुपये, 4 दिन बाद हम आएंगे, तुमको काम पे लेके जाएंगे। ना 4 दिन बाद हुआ है ना कुछ, मतलब को 50,000 वो भी भूल गया भाई साहब, ठीक है। वो मतलब 500-600 कमाने वाला इंसान अचानक से 50,000 रुपये देखेगा, उसको क्या मालूम कि भाई साहब इसके पीछे उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ही डजंट नो अबाउट इट, राइट।
ऐसे 5-6 मजदूरों के साथ उन्होंने किया, फिर वो रैकेट बस्ट हुआ, फिर वो हॉस्पिटल सील हुआ, डॉक्टर्स अरेस्ट हुए। ऐसे किडनी के बहुत सारे रैकेट्स हुए हैं। एक और रैकेट हुआ था जहाँ पे तमिलनाडु में एक बंदा, उसने अपनी किडनी बेची, अपने वाइफ की किडनी बेची, वाइफ के बहन की किडनी बेची, ऐसे पूरे परिवार की किडनी उसने बेचकर बस अब 7-8 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, सो फिर ये तो धंधा हो गया भाई साहब, दिस इज बैड। ठीक है, इफ यू आर डोनेटिंग योर किडनी दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट आप इस तरह से किडनी का धंधा करने लगेंगे। ठीक है, so kidney transplant is what people, kidney transplant is basically implanting. This was not common until 1971. 1971 तक ये उतना कॉमन प्रोसेस नहीं था। फर्स्ट परफॉर्म्ड इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तमिलनाडु। ठीक है, डॉक्टर मोहन राव एंड डॉक्टर जॉनी कैरिड आउट द ट्रांसप्लांटेशन किडनी फ्रॉम अ लिविंग पर्सन। दो भी चीज हो सकते हैं। ठीक है, किसी डेड पर्सन से भी किडनी को निकाला जा सकता है, ऑफ कोर्स विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं कि भाई साहब 3 दिन बाद आप निकाल रहे हैं, विद इन 24 आवर्स ऑप्टिमल यूज के लिए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपके जितने भी एक मरे हुए इंसान के सारे शारीरिक अंग धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। दे बेसिकली स्टार्ट डीकम्पोजिंग, दे स्टार्ट, क्योंकि उनके पास अभी ब्लड नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो किडनी फ्रॉम अ लिविंग पर्सन ट्रांसप्लांटेड इनटू अ पेशेंट्स बॉडी। तो ऐसा हुआ, पेशेंट्स फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर सर्जरीज। इंडिया में कंपैरेटिवली सर्जरीज का कॉस्ट कम है, हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया में सर्जरी का कॉस्ट कम है, इसीलिए बाहर से लोग आते हैं सर्जरी कराने के लिए। और इस फॉर्म ऑफ टूरिज्म का नया नाम क्या है? मेडिकल टूरिज्म। इसको अपन मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। आप अगर देखोगे भाई साहब, बाबा रामदेव के शिविर में बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत सारे लोग भाई साहब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया आते हैं, बहुत सारे लोग यूनानी ट्रीटमेंट्स के लिए इंडिया आते हैं, और प्लस एलोपैथिक सर्जरीज के लिए भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्जरीज आर कंपैरेटिवली लेस कॉस्टलियर इन इंडिया। ठीक है, हमारे लिए कॉस्टलियर हो सकते हैं लेकिन बाहर वालों के लिए नहीं है। Patients from underdeveloped countries come to India for surgeries. Test tube baby, from 1978 test tube baby technology is available. So childless couples जिनको भाई साहब children नहीं हो रहे हैं, they can avail these services in order to produce children. Started under the supervision of Dr. Subhash Mukhopadhyay, Kolkata. First successful attempt at artificial conception. Girl named Durga was born. Help solve problems of childless couple. तो childless couples हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ठीक है, अगर कोई किसी कपल को वैसा चिल्ड्रन नहीं है तो सारे समाज को प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें भाई साहब, बहुत सारे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। तो चाइल्डलेस कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स आज की तारीख में तो आपको चारों तरफ दिखेंगे। ओके, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रोग थे, जैसे पोलियो हो गया। ठीक है, देन वी हैड स्मॉल पॉक्स। पोलियो परमानेंटली इंसान को डिसेबल कर देता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये किलर डिजीजेज हैं, इनका भाई साहब वैक्सीनेशन आज की तारीख में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द ड्रेडफुल डिजीजेस बिकॉज ऑफ विच वी यूज टू लूज आवर लाइव्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज, वी हैव नाउ गॉट रिड ऑफ इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू ओवरकम द थ्रेट ऑफ पोलियो, टिटनेस, ठीक है, टीबी, मीजल्स, डिप्थेरिया एंड वूपिंग कॉफ, इन सब के वैक्सीनेशन आपको लग जाते हैं एक साथ। ठीक है, पोलियो तो आज की तारीख में ओरल ड्रॉप्स होता है भाई साहब। ठीक है, हर 3-4 महीने में घर पे आके लोग देकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पोलियो के आपके ड्रॉप्स दिए थे, ओरल ड्रॉप्स होते हैं, ये ओरल वैक्सीनेशन है। ठीक है, बाकी ये सारे जितने भी आपके वैक्सीनेशन है, दीज आर बेसिकली इंजेक्शन वाले वैक्सीनेशन है। आज की तारीख में भाई साहब आपका वैक्सीनेशन बहुत कंफर्टेबल है। एक सुई लगती है ना, उसमें ही बच्चे पैं पूं चिल्लाते हैं। खैर, हमारे टाइम पे वैक्सीनेशन देखा है आपने कभी अपने मम्मी या पापा के हाथ में या ऐसे पैर में देखा रहेगा, एक बहुत बड़ा स्पॉट रहेगा। वो स्पॉट बेसिकली क्या है मालूम है? उनके बचपन में, मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है, इतना बड़ा एक स्पॉट है। ये स्पॉट क्या होता था, एक ऐसा कोम देखा है आपने, कोम जो ऐसे, ठीक है, तो ये कोम में जैसा सुई होता है ना, वैसा होता था। उस सुई को वैसा वैक्सीन ड्रॉप में लगाया था और ऐसे मारा जाता था, खून की पिचकारी निकलती थी वैसा वैसे। ठीक है, वो जगह पे कम से कम 2-3 दिन तक सूजन रहती थी, कभी कभी वहाँ पे पस भी निकलता था। बहुत तकलीफदायक था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। ठीक है, इट वॉज वेरी, और वो परमानेंट एक दाग रह जाएगा आपके मम्मी पापा के, देखोगे हाथ में रहेगा या पैर में ऐसा स्पॉट आपको दिखेगा, ये परमानेंट है। और सोचिए तकलीफ कितनी होगी। आज की तारीख में एक बच्चे को सुई लगता है, पैं पू करते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतना पेनफुल था एक्सपीरियंस, दैट वाज द एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारा जितना भी आपको ये दिख रहा है,
सब एक साथ धप से ऐसे लगा और खून की नदियां बहती थी भाई साहब ऐसे, ठीक है। मतलब एक ऐसा कोम की तरह चीज होता था जिसमें बहुत सारे ऐसे नीडल्स होते थे, बहुत सारे नीडल्स, और उसको ऐसे दबा दिया जाता था, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड टू बी। आज की तारीख में काफी आपका जो वैक्सीनेशन सिस्टम है काफी कन्वीनियंट हो चुका है, ठीक है। The pulse polio immunization program that was started in 1995 has controlled polio. पोलियो को हम टाटा गुड बाय बोल चुके हैं हमारे इंडिया से, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, घर तक लोग पहुंच रहे हैं। आपके भाई साहब स्टेशन में आपको दिखेंगे वो डब्बा लेकर, देखो, ठीक है। आपको भाई साहब बस स्टॉप्स में दिखेंगे, बिजी पब्लिक प्लेसेस में दिखेंगे, लोग घर पे भी जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर लोग इतना भी ना करें कि किसी हेल्थ केयर सेंटर में जाकर प्लस पोलियो, ये पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम है ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। 2 ड्रॉप देते हैं बच्चों को और ये पूरा फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन ये पोलियो एक ऐसा डिजीज है जो भाई साहब आप उससे बच नहीं सकते। मतलब एक बार अगर किसी को हो जाता है परमानेंटली वो हैंडीकैप हो जाएगा, परमानेंटली, ठीक है। उसका एक जो पूरा शरीर का एक हिस्सा है वो पूरा अपंग हो जाएगा, उसको आप रिवर्स कर ही नहीं सकते, परमानेंटली मसल अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं, तो इट हैज टू बी, और बहुत ही आराम से इसको आप अवेल कर सकते हैं, बड़े आराम से। इसमें कोई एक, आपको मालूम है ये जो वैक्सीनेशन है पल्स पोलियो का, ये आपको किसी मेडिकल स्टोर में भी नहीं मिलेगा। मेडिकल स्टोर में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्रीली ही मिलता है। कौन मेडिसिन वाला अपने पास कोई फ्री मेडिसिन रखेगा, ठीक है। सो ये फ्री मेडिसिन आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट इट, ठीक है। ये आपको बाकायदा घर तक पहुंचाया जाता है। सो दैट इज वन थिंग आउट हियर। Okay, check your graph. The first open heart surgery under the leadership of Dr. N. Gopinathan was successfully performed in the city of Dash is known as the father of Jaipur food. Dr. N. Gopinath, Pramod Sethi, Mohan Rao, none of these. So Pramod Sethi. Okay. Dr. N. Gopinath, open heart surgery, a skilled craftsman, test tube baby, polio. क्या होगा? ओपन हार्ट सर्जरी, ओके। द रॉन्ग पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र शर्मा, स्किल्ड क्राफ्टमैन। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, टेस्ट ट्यूब बेबी इज करेक्ट। डॉक्टर मोहन राव, पोलियो, ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। जयपुर फूड टेक्नोलॉजी, द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फूड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका घुटने के नीचे पैर का हिस्सा नहीं है, किसी भी रीजन से जयपुर फूड को अवेल करके एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से चल फिर पा रहे हैं, दौड़ भी पा रहे हैं, ठीक है। सो द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फूड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द डिसेबल्ड इन इंडिया। Prior to 1968, if a person lost a leg in an accident, he had to suffer for the rest of his life, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के लिए उसको सफर करना पड़ेगा। As a remedy, Dr. Pramod Sethi designed and manufactured artificial limbs, noses and ears with the help of skilled craftsman Ramchandra Sharma. Such artificial body parts manufactured with this technology have made it easy for the differently abled persons to walk barefoot on rough surfaces, run, go cycling, work in the fields, climb trees and even climb mountains. एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है कोई भी जिसका भाई साहब घुटने के नीचे पैर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बहुत सारे लिम्स ऐसे, मतलब सिर्फ हाथ पैर का ही नहीं, हाथ का भी, ठीक है। As a result, differently abled people can save the expense on shoes as there is no need for footwear on these artificial limbs, ठीक है। तो इसमें फुटवेयर की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, आर्टिफिशियल लिम्स है, you do not need footwear as well. They can even bend their legs at the knees and sit cross leg. एक नॉर्मल इंसान जैसे क्रॉस लेग बैठता है, ठीक है, इस तरह से बैठना, ठीक है, इस तरह से बैठना, बेंड करना नीज को आप, ठीक है, जिस तरह से मतलब जंप करना, all these can be done. These feet are convenient even while working in water or wet conditions. वाटर या वेट कंडीशंस में भी ये काफी कन्वीनियंट है। Steps taken by Indian government for scheduled castes and scheduled tribes as per 1971 census, 22% of people in India belong to scheduled castes and tribes. Several laws were enacted so that they receive educational scholarship and representation in parliament as well as state assemblies. तो बहुत सारे laws बनाए गए ताकि इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। Some seats were also reserved for them in the government services. कुछ सीट्स को भाई साहब गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी रिजर्व किया गया, ठीक है। क्लियरम पीपलम। The campaign for pulse polio immunization was taken up. तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है
वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, घर तक आकर पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाएंगे, ठीक है। सो बिफोर 1978 6 out of every 10 Indian infants faced fatal health problems in the very first year of their birth. तो पहले एक साल में ही, ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करते थे, पोलियो, ठीक है, डिप्थेरिया, वूपिंग कॉफ, ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। बिफोर 1978 6 out of every 10 Indian infants faced fatal health problems in the very first year of their birth. They faced fatal threats of polio, measles, tetanus, TB, diphtheria and whooping cough. The immunization program was taken up to overcome these threats. तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम देखो, ये जो हमारे पॉपुलेशन बढ़ा वो क्यों बढ़ा, उसके लिए एक साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर किसी घर में 10 बच्चे पैदा होते थे तो लगभग 5 मर जाते थे पहले साल में ही, दूसरे साल में ही, या 5 साल वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे किसी ना किसी रोग के कारण, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, बच्चे का बॉडी जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उतना स्ट्रांगली इम्यून नहीं होता है। तो जब भी कोई छोटे मोटा चीज भी अगर कोई होगा तो वो मर जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से। लेकिन हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस चीज को पूरा पूरा कंट्रोल किया गया। इन लाइन विद दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम was later started in 1995 in order to control polio. Thus the campaign for pulse polio immunization was taken up. तो ये कैंपेन चालू हुआ भाई साहब। अर्बनाइजेशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर में अलग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी एरियाज इज नोन एज अर्बनाइजेशन, ठीक है। रीजंस इन्फ्लुएंसिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, भाई साहब आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। एयर में पोल्यूशन हो रहा है भाई साहब, वाटर एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस हो रही हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब बैंक्स, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर किसी जगह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या रैपिड ग्रोथ हो रहा है या फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका भाई साहब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो सोसाइटी जैसे जैसे सेटअप होती जाएगी ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, नाउ व्हाट इज मोर्टेलिटी पीपल, मोर्टेलिटी इज डेथ रेट बेसिकली, ठीक है। तो जैसे जैसे भाई साहब शहरीकरण बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, वैक्सीनेशंस बढ़ेंगे, मेडिकल केयर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा भाई साहब, रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, मतलब डेथ जो होती है वो कम होती जाएगी, ठीक है। डेथ रेट्स विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, उनकी अनअवेलेबिलिटी होना। अभी होता क्या है, देखो, अनअवेलेबिलिटी मीन्स जैसे रूरल एरिया है कोई, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई साहब, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, गांव में अभी कोई है नहीं, है ना, गांव में ज्यादा लोग नहीं है और ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका लाइवलीहुड है, मतलब गांव में कुछ काम करके उत्पादन करना और पैसे कमाना, वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होता जा रहा है, ठीक है। अभी दौड़ किसकी तरफ है, शहरों की तरफ है, ठीक है। तो गांव में बहुत कम लोग रह जाते हैं और एक्चुअली में जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, एक ट्रैक्टर 50 भर आदमियों का काम कर देगा भाई साहब, ठीक है। सो उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। सो गांव में अभी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटीज। ओके, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया है भाई साहब, विलेज इज अ परमानेंट सेटलमेंट फॉर फार्मर्स, दे आर थिनली पॉपुलेटेड। तो विलेज जो होता है आपका बहुत थिन पॉपुलेटेड होता है, मतलब आपको एक घर ऐसा दिखेगा, फिर कहीं दूर एक घर दिखेगा, फिर कहीं दूर एक घर दिखेगा, ऐसा आपको थिनली पॉपुलेटेड दिखेगा। हमारे शहरों की तरह नहीं है भाई साहब, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे फ्लैट्स नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। सो थिन पॉपुलेशन है विलेजेस में, ठीक है। डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस सराउंडेड बाय फार्मलैंड, कभी कभी आपको दिखेगा 4-5 घर ऐसे हैं और पूरा ऐसा फार्म है आजू बाजू, फार्मिंग करने जाते हैं उन लोग, ठीक है। हैमलेट इज सेटलमेंट स्मॉलर देन अ विलेज, तो विलेज से जो कम में होता है उसको अपन बोलते हैं हैमलेट, ठीक है। स्मॉल कम्युनिटी होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कलेक्टिव डेवलपमेंट्स केम इनटू फोर्स टू अचीव द गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्लान्स वेर मेड फॉर इंप्रूविंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड, ये सब प्लान्स बनाए गए। एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, सारे भाई साहब इंडिपेंडेंस के बाद हुए। एनैक्टिंग द लॉज
फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारे लॉज बनाए गए ताकि लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और क्या भाई साहब, ग्राम पंचायत का सेटअप हुआ, पंचायत समिति, जिला परिषद वेर एम्पावर्ड विद ग्रेट अथॉरिटी, काफी सारा इनको एम्पावरमेंट दिया गया, अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट वाज गिवन टू दीस प्लेसेस, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, okay, in 1961 82% of India's population resided in villages। 1961 को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, शहरीकरण उस टाइम पे बहुत कम हुआ था, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 82% लोग जो है इंडिया के वो कहां पे रहते थे, विलेजेस में रहते थे, 82%, ठीक है। इन 1971 आप देखो ये परसेंटेज 2% से कम हो गया, दिस परसेंट डिवाइडेड, रूरल एरिया शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स टू अर्बन एरियाज। ऑब्वियसली भाई साहब जितना भी आपका खेती बाड़ी होता था वो रूरल एरियाज में होता था, तो अनाज जो उगता है वो कहां पे उगता है, रूरल एरियाज में उगता है, और यहां से ही अनाज कहां पे आता है, शहरों में आता है। तो रूरल एरिया शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स टू अर्बन एरियाज, ऑल्सो सप्लाई लेबर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ अ सिटी। ज्यादा करके इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में, शहरों में जो लेबर लगता है वो कहां से आता है, इन गांवों से आता है, ठीक है। इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम दीज विलेज एरियाज। टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रूरल एरियाज भाई साहब आपके नेचुरल रिसोर्सेज को टेक केयर करते हैं। मेजर चैलेंजेस विद रेफरेंस टू रूरल डेवलपमेंट आर ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रूरल जगहों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो फार्मिंग रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड है या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड है, ठीक है। सो डेवलपमेंट्स आर स्लो। डेवलप फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू मीट सोशल नीड्स, तो सोशल नीड्स हैं, देखो अभी अगर आप शहरों में देखोगे तो बहुत डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब कास्ट को लेकर लड़े या रिलीजन को लेकर लड़े। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे बहुत सालों से कोई रह रहा है और कोई दूसरा अगर आता है तो उसको उनका वेलकम नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कास्ट और रिलीजन बेस्ड जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और डिफिकल्ट टू हैंडल भी है, ठीक है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इन मैटर्स कंसर्निंग सोसाइटी, कल्चर एंड वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इन मैटर्स कंसर्निंग सोसाइटी, कल्चर एंड वेज ऑफ थिंकिंग। तो इसमें चेंज लाना थोड़ा मुश्किल है, कहां पे, विलेज एरियाज में, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरातन टाइम के लोग हैं और उनकी बहुत पुरानी टाइप की थिंकिंग भी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड टू एक्सपेडाइट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स लाया जाए और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी हम बढ़ावा दें। सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज, रूरल पॉपुलेशन फेस प्रॉब्लम्स। क्या क्या पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आएगा भाई साहब, देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, ओपन ड्रेनेज, ठीक है, नैरो रोड्स, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिफिकेशन, आधे टाइम भाई साहब बिजली नहीं है, एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सारे भाई साहब प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज के, ठीक है। लैक ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज, बहुत अच्छे स्कूल्स या कॉलेज का ना होना, ठीक है। कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम हैड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फर्स्ट 4-5 year plans of the government of India. The state of Maharashtra registered remarkable achievements under this scheme. जिला परिषद were established in 1962. खत्म हो गया, कर दियो भाई सर। So Zilla Parishad was established in 1962, ठीक है। Nutritious diet scheme was launched in 1970 to 71, ठीक है। Rural water supply scheme for sinking wells and pipe water, ये सारे भाई साहब तैयार हुए, जिला परिषद एस्टैब्लिश हुए 1962 में। न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम, तो ये सारे तमाम छोटे छोटे स्टेप्स से
गांव में सुधार लाने की कोशिश हुई। By 1971, 1677 small dams have also been built. इन small dams से भाई साहब वाटर की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बहुत हद तक कवर किया गया। ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। ऑटोमेटिक पंप्स नीडेड टू वाटर द फील्ड्स। ठीक है। तो इससे भाई साहब वाटर करना, इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पेरिशेबल फूड आइटम्स। भाई साहब अगर आप फ्रिज रखते हो तो किस लिए रखते हो? आप फूड को प्रिजर्व करके रख सको, है ना। अगर फ्रिज चले ही ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो किस काम का? ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। प्रिजर्व पेरिशेबल फूड आइटम्स, पेरिशेबल मतलब जिनकी खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मिल्क हो गया, पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, मक्खन हो गया, या मीट प्रोडक्ट्स या फिश प्रोडक्ट्स, इवन वेजिटेबल्स, इनके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फ्रिज मतलब कोल्ड स्टोरेज होता है जो उनको खराब होने से बचाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो फ्रिज किस काम का? रन फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में मतलब जैसे अगर पंप चल रहा है तो मोटर चलेगा तो पानी खेतों में जाएगा। तो इन सब के लिए भाई साहब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे जो जैसे आपका देखो यहाँ पे गांव खेड़ों में क्या होता है, बायोगैस प्लांट्स होते हैं, है ना। उसमें गोबर डालते हो आप, जो गोबर रहता है भाई साहब उससे क्या बनता है? गैस बनता है, गोबर गैस बनता है। और ये बाद में क्या रह जाता है? एज अ फर्टिलाइजर रह जाएगा। लेकिन इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ठीक है। फॉर यूजिंग फैंस, टीवी, ये तो है ही। यूजिंग लाइट्स फॉर स्टडिंग एट नाइट। ठीक है। एज पर द फर्स्ट 5-year प्लान, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड टू 3000 विलेजेस। तो 3000 विलेजेस को भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन किया गया। बाय 1973 it reached to 1,38,646 villages. ठीक है। From 1966 more electricity supplied for pumps and borewells. तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई भाई साहब कहां से? पंप्स और बोरवेल से। In 1969 the Rural Electrification Corporation, जिसको हम REC बोलते हैं, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। This was basically established. ठीक है। Rural electrification cooperative societies came into existence in the states of Andhra Pradesh, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। ओके, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू लेटर। सो एजुकेशनल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टार्टेड रेसिडेंशियल हाई स्कूल्स। तो विद्या निकेतन होते हैं जो सातारा में, औरंगाबाद में, नासिक और चिखलदरा में। रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है? रेसिडेंशियल मतलब एक हॉस्टल की तरह लोग वहां पे रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। They basically stay there and they complete their studies as well. ठीक है। Aim to provide the best quality education to intelligent and meritorious village students. तो बहुत सारे village students हैं, ठीक है, जिनको मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, एजुकेशन को प्राप्त करने का। सो यहाँ पे एम क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इंटेलिजेंट एंड मेरिटोरियस विलेज स्टूडेंट्स लिविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं इनको भाई साहब प्रोवाइड करना। ठीक है। दैट इज वन थिंग। Agricultural universities were also started at Rahuri, Akola, Parvani and Dapoli in Maharashtra. इन सब जगहों पे भाई साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुए हैं। यूनेस्को अवॉर्डेड इट्स इंटरनेशनल प्राइज फॉर द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी टू महाराष्ट्र इन 1972। यूनेस्को मतलब यूएनओ का एक विंग है। ठीक है। तो ये एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अवार्ड दिया है महाराष्ट्र में जो लिटरेसी कैंपेन्स किए गए हैं या लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं उसके लिए 1972 में यूनेस्को ने अवार्ड दिया है। ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा है वैसे। खैर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। इन महाराष्ट्र डैश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। सिटी काउंसिल, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद। सो द करेक्ट आंसर इज जिला परिषद। ठीक है। अ डैश वाज फॉर्म्ड टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। Village Employment Committee, Village Development Committee, Village Industrial Planning Committee, Village Industries Union. So it was Village Industries Planning Committee. Choose the correct option from the given options and complete the statements. UNESCO awarded its international prize for the spread of literacy to Dash in 1972. Maharashtra, ठीक है। Write short notes on urbanization. Urbanization refers to a process of Urbanization refers to a process of concentration of population in a city or an urban area। ठीक है। तो urbanization मतलब होता क्या है कि एक अर्बन
जो आपके जो पॉपुलेशन है वो एक सिटी में कॉन्सेंट्रेट होना. द मेजर रीजंस इन अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. Other factors that affect urbanization are air, water supply, and the economy, as well as social organizations necessary for community life. In the context of post-independence area, the increase in urban population is also attributed to factors such as industrialization. तो urbanization किन चीज़ों से बढ़ता है? Urbanization बढ़ता है आपके industrialization से, ठीक है? ठीक है? Reduction of mortality rate, मतलब लोगों के मृत्यु का दर कम है, ठीक है? Unavailability of the means of livelihood and in rural areas, obviously rural areas में कमाने के जो sources हैं वो कम है. Job opportunities in cities and resulting migration, ये सारे आपके भाई साहब urbanization के नियम हैं, ठीक है. Explain the statements with reason. The rural water supply scheme was started. The rural areas in India are facing problem of year-round provision of drinking water facilities. Rural जगहों पे हमेशा drinking water facility का problem है, ठीक है. At the first 4-5 year plans of Indian government gave an important place to the collective development scheme for rural development. As a part of this collective development scheme, the rural water supply scheme was started with the objective of sinking wells and providing water. Was started with objective of sinking wells and providing water throughout water supply pipes. Even small dams have been built in 1971. तो छोटे छोटे डैम्स के माध्यम से रूरल वाटर सप्लाई को मुहैया कराया गया है. Thus the rural water supply scheme was started for resolving the water supply issues in rural India. What are the challenges facing rural development? क्या क्या challenges हैं भाई साहब रूरल डेवलपमेंट में? What are the challenges? The three major challenges with reference to bring about economic development. तो आर्थिक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, to develop facilities in order to meet social needs, ठीक है. to bring about a change of attitude in matters concerning society, culture and ways of thinking. तो जो लोग गांव में रहते हैं उनका जो सोच है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस सोच में भी डेवलपमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड टू एक्सपेडाइट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स. तो लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है और एक्सपेडाइट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को भी चालू करने की कोशिश किए जा रहे हैं. What remedies has the government taken towards rural development? इतने सारे पॉइंट्स का आंसर लिख लोगे. मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और लोगों को ना लगता है, मतलब कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी पढ़ने के लिए नहीं आता है, बहुत कम है. आपको इसी बात पे मैं कल टेस्ट दे दूंगा ना, वही 2-3 मार्क्स में आप क्लोज कर दोगे. इस तरह से पॉइंट वाइज आंसर होने चाहिए. होंगे आपके? होंगे. मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में होने वाले हैं. कुछ लोगों को वैसा स्कूल से धमकी मिल चुकी है, इतना परसेंट अगर नहीं किया तो 10th में नहीं जाने देंगे. बिकॉज ऑल द ईयर राउंड मैं बोलता रहा, ना तो आपके पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, ना आप ठीक से आपका अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, ना पढ़ाई होती है, ना नोट्स बनते हैं, ना एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं. वही चल रहा है सिलसिला. और पता नहीं क्यों पेरेंट्स को लगता है कि अगर भेज दिया क्लास में तो मैजिक हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट मैजिक. आपकी तरफ से अगर पढ़ाई नहीं होगी तो मैं क्या करूँ? जूता फेंक के मारूँ, हाथ पैर घुमाऊँ क्या? इन सब चीज़ों को मैं छोड़ चुका हूँ और मतलब भी नहीं बनता है. इस तरह से पॉइंट वाइज आंसर आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पढ़ाई है ही नहीं. तो मेरे को ना लगता है कि ये मैं ऐसे ही, मतलब कभी कभी ऐसा है ना कि भाई कोई पेड़ लगा हुआ है, उस पर आप पानी डाल रहे हैं तो पेड़ का ग्रोथ होगा. यहाँ पे तो खाली मिट्टी है भाई साहब, ऐसे ही पानी डाले जा रहे. समटाइम्स इट फील्स सच अ ह्यूज वैक्यूम इनसाइड. और इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. दीवार लगते हैं मुझे यहाँ पे सब. इसी बात में मैं कल टेस्ट दूंगा ना, आपका भाई साहब 5 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा क्योंकि आप इस फॉर्मेट में आंसर अभी तक लिखे ही नहीं है और लिखना चाहते भी नहीं है. तभी लिख पाएंगे जब आप पढ़ेंगे. What remedies has the government taken towards rural development? मैं यहाँ पे उस दिन 8th स्टैंडर्ड के ना 8-10 पेरेंट्स को मैंने यहाँ पे बुलाया था, एक साथ ही सब यहाँ पे खड़े थे. इतने टेस्ट कंडक्ट करवाए, उनको मालूम ही नहीं क्योंकि पेपर उन्होंने दिखाया नहीं है घर पे. मार्क्स जा रहे हैं, अरे मार्क्स बहुत कम आ रहे. अरे देखो तो सही तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है. कुछ नहीं कर रहा है. जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है उसी क्वेश्चन को वहां पे लिख रहा है आंसर पेपर में. 2 पेज का पन्ना है भाई साहब, सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. क्या ही मार्क्स मिलेंगे इसमें? क्यों ही टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई साहब? इतना फॉर्मेट है भाई साहब, इस तरह से आंसर्स लिखने हैं आपको. जितना भी बोरिंग चैप्टर हो और जितना भी बोरिंग टॉपिक हो,
दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू हैव टू राइट द आंसर्स पॉइंट वाइज। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके आंसर लिखने के टेक्निक्स हैं। सिर्फ चैप्टर समझाने से नहीं होगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे होते हैं और उनके आंसर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, जिन पे आपको रत्ती भर भी रुचि नहीं है। एंड आई एम टायर्ड ऑफ दिस। रोज का भाई साहब ये बोलो बताओ, वही नील बटे सन्नाटा रहेगा। आधे से ज्यादा पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि टेस्ट कंडक्ट होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं नहीं चेक करते उनका मामला है। सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अ मैजिक टू हैपन। ये 9th स्टैंडर्ड ही देख लो भाई साहब, इसमें जितने भी बच्चे हैं इंक्लूडिंग सीबीएसई, एक भी पेरेंट मुझसे मिलने नहीं आया है, पूछने नहीं आया है। रिजल्ट भेजने के पहले सब कमेंट मारेंगे। किसी को फुर्सत नहीं है भाई साहब आके मिलने की, इतने बिजी हैं वो। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्क्स, सबको यही बोलते हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ट्यूशन किस लिए भेज रहे हैं। अरे भाई साहब ये चने के झाड़ पे नहीं लगे होते हैं मार्क्स। Remedies has the government taken towards rural development to ensure rural development? The collective development scheme has come into force. तो collective development scheme आया है भाई साहब। अरे यार इसमें भी परेशान हो गया मैं। To ensure rural development, the collective development scheme has come into force. Under this scheme, plans were formulated to improve farming technology. तो क्या क्या प्लान्स है भाई साहब? देखो गांव में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो किन चीजों को प्रमोट करेंगे? ऑब्वियसली फार्मिंग टेक्नोलॉजी, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड लैंड का एरिया बढ़ाना, टू एक्सटेंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, एज वेल एज एनैक्ट लॉज एंड लैंड रिफॉर्म, ठीक है, एज वेल एज टू एनैक्ट लॉज एंड लैंड रिफॉर्म। ये सारे भाई साहब आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एक्सपैंडिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, health services and scope of education in the rural areas. Also, priority was given to ensure economic development in villages. The government attempted this through the medium of Gram Panchayat that included the people from all castes and tribes. In order to attain this goal, the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Jilla Parishads were empowered with more authority. So ये जो आपके wings हैं, देखो ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको ज़्यादा पावर दिया गया ताकि ये ज्यादा डेवलपमेंट गांव में ला सके, ठीक है। दिस वाज बेसिकली गिवन सो दैट दे कैन ब्रिंग मोर डेवलपमेंट। सो अगर आप देखोगे टाइम लाइन्स रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया, 1962 जिला परिषद्स वे एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र, 1964 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1966 डिसीजन टू सप्लाई मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर पंप्स एंड बोरवेल्स हुआ था, 1968 द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फूड टेक्नोलॉजी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जिसको हम REC भी बोलते हैं वो established, 1970 न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, 1971 1677 डैम्स had been built in accordance with the rural water supply scheme, क्योंकि रूरल वाटर सप्लाई गांव खेड़े में एक चैलेंज था, इसलिए इतने सारे डैम्स बिल्टअप किए गए। 1972 in recognition of the work done in the field of education, यूनेस्को ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भाई साहब प्राइज से सम्मानित किया। एट द एंड ऑफ द थर्ड क्लास काइंड ऑफ कंपार्टमेंट्स द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ, ऑल द सिटीजंस हैव द राइट टू फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतने सारे डेट्स याद रह जाएंगे, एक भी यहाँ पे एक या दो लोग नोट कर रहे हैं, बाकी सब फुर्सत में हैं। थोड़ा मन बना लो भाई साहब पढ़ने का, फिर मैं मन बनाता हूं अपना पढ़ाने का।